ਸੋ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਧ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ। अकेले ही अपने आप को ही दिखाता रहूं, मेरा ये मेरा वो मेरा वो मेरा वो लोग रिलेट नहीं करेंगे उतना। बिल्कुल, जो एकता में बल होता है ना वो अकेले में नहीं होता। क्या हुआ बोल तो सही, कभी ऐसा होता है फिर जब लड़ाई होती है फिर तुम बोलते हो कि चुप रहते हो, जैसे हो वैसे ही कर देते हो। ये वैसे तो मैंने देखा जैसा है वैसे ही कर देता है। अरे पीछे करो। 50 दिन हुए थे तब जाके मेरी वीडियो वायरल जानी शुरू हुई, 20,000 30,000 व्यूज आने शुरू हुए। फिर मैंने 100 डेज का करा, 100 डेज का भी हो गया, 200 का भी हो गया, फिर 365 भी हो गया कंप्लीट, 1 साल डेली ब्लॉगिंग। तो ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो करा। डेली ब्लॉगिंग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आप पूरे सब कहीं से भी ट्राई करा सकते हैं, मतलब कहीं से भी ट्राई करा सकते हैं। हम नदी के बीच में सोए हुए हैं, कोई सेफ जगह नहीं है वो। अच्छा, और जगह भी ऐसी प्लेन नहीं, ऐसे सीधी नहीं, ऐसे ऐसे में सोए थे हम। ऐसे में सोए थे हम। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਗੈਸਟ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਲੌਗਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ स्टार्ट। और आज हम साथ में हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्लॉगर, सबसे फेमस ब्लॉगर, सबसे ज्यादा व्यूज लाने वाले ब्लॉगर भारती सिंह के साथ। नहीं। ਅੱਛਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਸੋਰੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ। ਐਜ਼ ਅ ਕਮੇਡੀਅਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਵਲੌਗਿੰਗ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। सौरव जोशी एंड पीयूष यार, तो यार बड़ी खुशी हो रही है आज सौरभ। जब लॉकडाउन में हम सब घर में बंद थे तो हर्ष ने मुझे बोला, मैं क्या मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं क्या मैं बोर हो रही हूँ, टीवी पे कोई शो भी नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ। तो इसने बोला कि तब व्लॉग देखने शुरू कर। मैंने बोला व्लॉग क्या होते हैं। मुझे लगा था व्लॉग पता क्या होते हैं, हेलो आज मैं मालदीव जा रही हूँ, यूहू, लड़कियों वाले व्लॉग होते हैं। इसने बोला कि ये लड़के का देख सौरव जोशी का। मैंने ना तुम्हारा थंबनेल था, तुम ऐसे चश्मे वाले खड़ा, मैं क्या ये छोटे से बच्चे क्या करता होगा व्लॉग में। भाई मैंने देखना शुरू किया तुम्हारा व्लॉग, आज शायद हो गए 2 साल। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने तुम्हारा व्लॉग ना देखा हो, चाहे वो शादी हो पहाड़ में, या मम्मी से डांट पड़नी हो, या पानी डालना हो मम्मी पे, है ना। बेचारी आंटी पे मुझे इतना तरस आता ना, किस दिन पर्सनली मैं उनका इंटरव्यू लूंगी आज। यार इतना तंग, मतलब छोड़ो यार, बेचारी वो दिखता है मुंह पे कि वीडियो बना रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, ये सफाई होनी चाहिए यहाँ से, इसने कुत्ते के बाल खिलर के इधर, ये स्कूटर किसने लगा दिया, मैं कह दूंगी फिर तुम्हें गंद डालते हैं ये लोग। बड़ी स्वीट है आंटी। लेकिन सारा ब्लॉगिंग का जो आइडिया है वो कहाँ से आया? आइडिया मतलब मैं और ब्लॉगर्स को देखता था उस टाइम, मतलब इंडिया में कुछ ही ब्लॉगर थे, ज़्यादा नहीं थे, कुछ ही थे। मुझे पता था कि हाँ वो अपनी लाइफ दिखाते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं तो दिखाते हैं। मैंने भी स्टार्ट यहीं से किया था, ट्रैवल से ही। जब मैं कुछ स्पेशल होता था तभी व्लॉग करता था। मतलब मेरा मेन चैनल है आर्ट का चैनल, सौरव जोशी आर्ट्स का, वो था। उस पर आई थिंक 4-5 लाख सब्सक्राइबर थे। तो इस पे मतलब 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर थे बस। अच्छा, सौरव जोशी ब्लॉग्स पे। हाँ। और आज कितने सब्सक्राइबर है? आज तो 21 मिलियन आज ही हुए हैं। टचवुड यार, क्या बात है, 21 मिलियन मतलब। ਜਿੱਦਣ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ
20 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਲੋਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੋਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਲੋਗ ਇਹਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਲੋਗ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਲੋਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। यार क्या बात है, 21 मिलियन, मतलब सौरभ को आज शगुन पड़ गया है सब्सक्राइबर का। तो फिर कैसे हुआ? फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया। अरे बाप रे। अब लॉकडाउन में क्या करे, घर में रह गए थे। मैं वर्कशॉप वगैरह करता था आर्ट की, स्केचिंग की, तो वो भी नहीं कर सकते, कोई कहीं जा नहीं सकते, तो घर में ही थे। तो ब्लॉग ऐसे ही एक दिन बनाया, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने वो भी आर्ट का ही बनाया, मैं कुछ स्केचिंग कर रहा था उस चीज की। तो उसके बाद बनाते बनाते एक दिन बनाया, 2 ड्राइंग तो मैं डेली कर रहा था, उसका व्लॉग बना दे रहा था। तो उसमें व्यूज ऐड हुआ, फैमिली धीरे धीरे हुआ सब कुछ, फैमिली ऐड हुई धीरे धीरे, उसकी आदत पड़ गई फिर मेरे को भी, ऑडियंस को भी। तो एक वीडियो वायरल गई, फिर मैंने समझा कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से दूसरी वीडियो बनाई, वो भी वायरल गई। ऐसे धीरे धीरे करके लॉकडाउन में ग्रो हुआ। क्या लगता है सौरभ कि सौरभ जोशी से लोग रोज उसके YouTube चैनल पे क्या देखना चाहते हैं? वो एक बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लाइफ। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ना व्लॉगिंग तो करते थे, लेकिन जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल सिंपल नॉर्मली, हम इस तरह से थाली में क्या खा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं हर्ष को वही बोलती हूँ ना कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि तुम इतने बड़े ब्लॉगर हो कि मम्मी अब मैं खाने का शॉट लूंगा तो कांच के बर्तन नहीं, दाल गिर रही है चावलों के उधर है, प्याज उधर जा रहे हैं, मस्त एकदम। तो वो उस टाइम यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा था, वो एकदम सिंपल वाली चीज, जैसे काफी लोग बोलते हैं ना बिल्कुल सिंपल है, तो वो लोग एकदम से रिलेट कर गए कि यार ये तो हमारी तरह है। मतलब देखते हैं जैसे हम एकदम, जैसे आप कॉमेडी भी करते हो तो आप रिलेटेबल करते हो, तो लोग हंसी आती है, बहुत रिलेट करते हैं। तो वही चीज मैंने पकड़ी और उसको मैंने उसी से ग्रो हुआ। कितने वीडियोस के बाद लगता है कि ग्रो हुए? मैंने लॉकडाउन में ना टारगेट लिया था कि मैं 10 दिन डेली व्लॉग करूंगा, डेली। मुझे लगा था नहीं हो पाएगा, 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन, 10 दिन हो गए, फिर मैंने 20 दिन का करा। तो ऐसे ही मतलब मेरे 50 दिन हुए थे, तब जाके मेरी वीडियो वायरल जानी शुरू हुई, 20,000 30,000 व्यूज आने शुरू हुए। फिर मैंने 100 डेज का करा, 100 डेज का भी हो गया, 200 का भी हो गया, फिर 365 भी हो गया कंप्लीट, 1 साल डेली व्लॉगिंग। तो ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो करा। डेली ब्लॉगिंग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आप शायद 99% आपका टाइम शूटिंग और एडिटिंग में चला जाता है, और आप तो खुद एडिट करते हैं। मैं अभी बात बताती हूँ कि सौरभ को मैं कैसे जानती हूँ, है ना। हर्ष ने मुझे बता दिया कि ये लड़का बहुत अच्छे व्लॉग करता है, एकदम घरेलू, तू देखना तेरे को मजा आएगा, तू जैसी है ना ये वैसे वाले हैं। तो मैंने व्लॉग देखने शुरू किए, मुझे कड़क लगा यार, मेरे को आंटी अंकल मतलब लगा कि कोई करेक्टर है, कोई शो चल रहा है और एक करेक्टर है। आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे का काम है कि उसने जो सफाई या खाना वेस्ट करोगे तो वो फोन पे ही आपका गाली पड़ जाएगी। मैंने सामने से मैसेज किया, बहुत अच्छे होते हैं आपके व्लॉग, इसका तुरंत जवाब है। एक बार तो मैं सरप्राइज हो गया था एकदम से कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बहुत बार देखा, हमको बता रहे थे घर में, मैंने बहुत बार देखा कि मैंने पूरी फैमिली को बताया, मम्मी को बताया, सब खुश हो गए। देखो अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे स्केच भी बड़े अच्छे लगते थे, बट ये हमको कितनी देर से जानता है, एक बार पति पत्नी और गोले का स्केच नहीं बनाया इसने। अभी तो बोला 13 घंटे लगते हैं वो करने में। सरप्राइज है ये कह रहा है, 1.5 साल से कह रहा है सरप्राइज, पता नहीं कब देगा। हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, मूंछें आ जाएंगी, फिर तुमसे कैसे स्केच बनेगा, फिर फोटो अलग हो जाएगी। सौरभ, अगर कोई घर बैठा हुआ ब्लॉग बनाना चाहता है, उसको सौरभ जोशी की क्या टिप होगी? जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल, मतलब हर घर में व्लॉगर है, हर कोई व्लॉगिंग करना चाह रहा है। और मुझे देख के या फिर किसी व्लॉगर को देख के, तो गलती ये करते हैं ना, जो हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम हैं, वो खुद को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, सेम। वो वैसे होंगे नहीं, उनकी पर्सनैलिटी अलग होगी, लेकिन वो सेम जिस तरह से मैं खाना खा रहा हूँ जानबूझ के दिखाएंगे, हम भी वैसी थाली में खा रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, वही वैसी बातें कर रहे हैं। वो चीज तो ऑलरेडी है ना, हाँ ऑलरेडी लोग देख रहे हैं उसमें। ऑलरेडी देख रहे हैं। व्लॉगिंग में क्या होता है ना, लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी को सब्सक्राइब करते हैं। आप कैसे हो आपको सब्सक्राइब करते हैं। अब जैसे मैं कुछ भी डालूं, लोग मुझे देखते हैं, बिकॉज लोगों को मुझे देखना है, मेरी फैमिली को देखना है, पीयूष को, कुनाली को, ओरियो को, मम्मी पापा चाचा चाची मम्मा अबू सब, हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो लोग कनेक्ट करते हैं, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे देखा है ग्रो करते हुए। जिन्होंने स्टार्टिंग से देखा है वो सारे समझ जाते हैं। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜਕੱਲ YouTube ਤੇ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਬਣਾਵੇ, ਹਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 90% ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਆ। हाँ, ये मेन रीजन है। सच में मतलब सुबह उठते हो तो ऐसा होता है कि बस व्लॉग शुरू करना है अब,
कोई टाइम होता है कि अभी मैंने नाश्ता कर लिया, अब व्लॉगिंग के मन किया तो उठते सार शुरू कर दिया। हाँ, वो भी सोचना पड़ता है, अब डेली सेम चीज़ तो दिखा नहीं सकते, वो भी सोचना पड़ता है कि अब क्या चीज़ शूट करनी है, क्या लोगों ने पहले नहीं देखी है, उस हिसाब से क्या रिलेटेबल है। कई चीज़ें सेम भी होती हैं व्लॉग में, वो भी लोगों को देखना पसंद है। क्योंकि सेम चीजें लोगों को तब लगता है अभी पति सेम है तो फिर सेम ही चीजें बार बार आई थिंक मेरे को लगता है ना, जैसे मैंने सौरव जोशी व्लॉग्स जब देखना शुरू किया तब मेरे भी एक फेजेस थे। पहले मैं देखता था कि अरे इतने व्यूज आ रहे हैं, जरा देखूं तो क्या है। फिर मैंने देखा, मैं सौरव जोशी को देखता था, फिर सडनली मुझे ना मम्मी बड़ी एंटरटेनिंग लगने लगी कि मम्मी मारती है तो मेरी मम्मी जैसे यार पीयूष के लिए देखने लग गया कि अब पीयूष क्या बोलेगा, पीयूष क्या, अब कुनाली आया हुआ है तो कुनाली के लिए देखते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि मेरे चैनल देखने के, जैसे अगर किसी और ब्लॉगर को देखोगे, कोई ट्रैवल ब्लॉगर है या फिर कोई मोटो ब्लॉगर है या फिर कोई फूड ब्लॉगर है, तो उनका एक या दो रीज़न है। फूड है तो फूड देखने के लिए आ रहे हैं, या फिर ट्रैवल है तो ट्रैवल देखने के लिए ही आ रहे हैं। बट मेरे चैनल में मुझे लगता है बहुत सारे रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल जो यूथ है जो मेरे एज का है, तो वो मुझसे रिलेट करते हैं कि यार अगर मैं हूँ, मैं अपनी फैमिली, मतलब वो रिलेट करते हैं कि यार मेरे को भी अपनी फैमिली के लिए करना है, मैं भी इसकी एज का हूँ। जो कॉलेज जा रहे हैं, जो स्कूल में जा रहे हैं, जो अब दूसरा रीज़न मान लो पीयूष है, अब पीयूष की एज के बच्चे जो 7th-8th क्लास में हैं, वो इसको देख के, अब कुनाली हो गया, वो और छोटा है और छोटे बच्चे उसको देखना चाह रहे हैं। मम्मी से रिलेट कर, यार मैं भी तो ऐसी हूँ, मैं भी तो अपने बच्चों को ऐसे डांटती हूँ। और पापा हो गए, ओरी हो गया, डॉग लवर्स, सच में और बाकी अम्मा बाबू हैं, चाचा चाची हैं, पूरी फैमिली है। और ट्रैवल भी करता हूँ मैं साथ में, खाना भी दिखाता हूँ, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो मेरे को लगता है बहुत सारे रीजन है, कहीं ना कहीं एक रीजन नहीं है। बहुत सारे। हाँ, ये होता है कि सब चीजें देखना चाहते हैं लोग, फैमिली, एक बंदे को, कि काफी दिन हो गए कि पीयूष नहीं आया व्लॉग में। लोग मैसेज भी करते होंगे, यार पीयूष कहाँ है आजकल। फिर अरे फिर तुम बोलते हो कि पीयूष के एग्जाम चल रहे हैं इसीलिए, तो लोग जुड़ गए। आइडियल पैकेज है जब हम टीवी में कोई शो बनाते हैं ना, तो हम बहुत करते हैं यार, एक काम करो, एक ना डॉग रख दो, एक लड़का रख दो जो एम्बिशियस है, उसका ना एक छोटा भाई होता है जो शरारती है, उसकी मम्मी है जो हमेशा डांटती रहती है, पापा है जो पूजा करते हैं, धार्मिक है। तो कहीं ना कहीं जब आप एक टीवी का शो बनाते हो और जो चीज सोचते हो वो भगवान ने आपके व्लॉग्स में हमको दिखा दी। वही अगर मैं मान लो अकेले ही अपने आप को दिखाता रहूं, मेरा ये, मेरा वो लोग रिलेट नहीं करेंगे उतना। बिल्कुल, जो एकता में बल होता है ना, वो अकेले में नहीं होता। पीयूष घर में अम्मा बाबूजी, चाचा चाची, मम्मी डैडी, सौरभ किससे डरता है? मम्मी पापा किसी चीज के लिए मना नहीं करते। मतलब तो हम हमारा प्लान बना था कि कोई सुपर कार लेंगे, बड़ा बन का ले लो, बड़ी मम्मी अटक गई वहाँ पर। घर में सब मान गए लेकिन बड़ी मम्मी अटक गई, नहीं लेनी, नीची गाड़ी है, मैं नहीं बैठ पाऊंगी, ये वो। तो मेन उनका था, मैं नहीं बैठ पाऊंगी। अरे माँ का तो होता है ना, डर लगता ही है। अब घर से बाहर निकलते हो, तुम इतनी फास्ट गाड़ी लेके जा रहे हो, माँ दिमाग दिल से सोचती है। तो वो माँ का तो होता ही है हमेशा, हर चीज में मना करना। पापा का तो चिल है, ये सब तो कभी सोचा भी नहीं था। एग्जैक्टली, हम तो बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 24-25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲਾ ਬੰਦਾ। बहुत ज्यादा लोग हाँ, मतलब पापा जी तो मजदूरी करते थे लोगों के घरों में जाके, तो वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं भी रेडी था, मैं पापा के साथ में गया भी था काम करने, पापा और मैं मिलके काम कर रहे हैं मस्त। तो मैं सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं मतलब मेरे को अगर 10,000 की जॉब मिल जाती ना, मैं खुश था। मेरे को कुछ नहीं चाहिए था ऐसा, मेरे कोई ड्रीम्स नहीं थे कि मुझे, बट वो धीरे धीरे हो गया खुद ही। क्या बात है यार। फैमिली को ज्यादा कुछ पता नहीं है ना, फैमिली सिंपल है। वो पापा जी इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, अब वो मेहनत करेंगे, हमको क्या बताएंगे, उनको कुछ ज्यादा नहीं पता। और वो वही था, घर में माहौल वही था, तो बस हम भी सोचते कि हमको भी मेहनत ही करनी है, यही सभी करेंगे हम भी। अच्छा, पीयूष का सौरभ के व्लॉग्स में क्या योगदान है? बस वो भी नेचुरल है, जैसा है वैसे रहता है। मैं उसको शूट करता हूँ, उसको मतलब नहीं है, भाई हमने कहा अपने घर से देख लिया कितना नेचुरल वो। उसको मतलब ब्लॉग से मतलब नहीं है कि ब्लॉग बन रहा है तो मुझे ऐसे करना है, उसको उस चीज से मतलब नहीं है। वो जैसा नेचुरल है वैसा है। अच्छा पीयूष, तुम्हें कभी गुस्सा आता, तुम्हारा मूड नहीं है कि इसने तुम पे कैमरा रख दिया, बता पीयूष क्या हुआ, बोल तो सही, कभी ऐसा होता है? फिर जब लड़ाई होती है फिर तुम बोलते हो कि चुप रहते हो, जैसे हो वैसे ही कर देते हो। ये वैसे तो मैंने देखा जैसा है वैसे ही कर देता है। अरे पीछे करो यार, सौरभ क्या कर रहे हो, है ना? यही होता है बस। अच्छा, सौरभ जोशी सारा दिन क्या करता है? ब्लॉग बनाता रहता है या दूसरों के ब्लॉग या शॉर्ट्स या यूट्यूब में कोई और अच्छी चीजें क्या करते हो?
वही मैं बनाते रहता हूँ बस सुबह से शाम तक। हाँ क्या बता ये कुछ हाँ कुछ बता रहा है सौरभ जोशी का कुछ। सौरभ का ये थू कट गया करता। बोल बेटा कोई नहीं। सौरभ जोशी क्या करते हैं आज तक समझ नहीं आया। सौरभ जोशी देखो मैं स्कूल जाता हूँ सुबह 6 बजे, तब तक तो ये बिस्तर में ही रहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तुम उसको कोई इशारा नहीं करोगे? हाँ उसको बोलने दो आज। तो रात को मैं एडिट करता हूँ भाई, उसमें क्या है। रात को तो मैं भी एडिट करता हूँ। पर ये इनका घर कितना अच्छा है यार, लड़के भी मैगी बना रहे हैं, किसी दिन कोई चावल बना रहा है, सिर्फ वहाँ पे 2 ही औरतें हैं, बाकी सारे बॉयज, इवन कि ओरियो भी बॉय है ना। मतलब आप सोचिए कि आने वाले कुछ सालों में कितनी औरतें आने वाली घर में, औरतों के नाम पे कितने खुशी है। इसने पहले इशारा कर दिया, पहले तो मेरी आएगी, पहले सौरभ की शादी होगी, फिर साहिल की, फिर पीयूष। ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਸਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। हाँ फिर तुम्हारी, फिर कुणाली की है ना, फिर ओरियो की होगी। ओरियो की भाई इससे पहले करो। ओरियो की शादी कर दो पहले। हाँ, करते जल्दी। हाँ ओरियो के लिए अगर कोई लड़की बॉम्बे से चाहिए, लेकर आए हम। पार्ले जी ओरियो के लिए कहता ओरियो नहीं, पार्ले जी। ये है इसका ह्यूमर, देखो ये इसने ना पूरा वो तोड़ ही दिया। पार्ले जी, पार्ले, ओरियो पार्ले जी। मैं क्या पार्ले जी मांग रहा है? देखो ये घर में भी ऐसे करता है। ओरियो के लिए पार्ले जी। स्कूल जाते हो, सारे आम बच्चे हैं, तो वहाँ पे तुम्हें देख के क्या लोगों का रिएक्शन मिलता है? लोगों का रिएक्शन मतलब जब स्टार्टिंग में मैं स्कूल जाने लगा था तब था रिएक्शन, मतलब टीचर से लेके बच्चे से लेके सब। और ये तो वही है, मतलब ब्रेक होता था बीच में और सारे बच्चे मेरी क्लास में आते, लिटरली मेरी क्लास में 30 बच्चे होंगे और मेरी क्लास में 60 बच्चे आ जाएंगे, 30 मेरे से मिलने के लिए आएंगे। ऐसे ही था। मैं क्या बातें पूछते हैं पीयूष? नॉर्मली ऐसे ही हाय हेलो, फोटो तो खिंचवा नहीं सकते स्कूल में, नॉर्मली ऐसे सीन था, हाय हेलो करते थे, बातें चलती थी और ब्रेक होता था सब चले जाते थे। अब बिल्कुल नॉर्मल है। इसका नुकसान भी तो होता होगा जब टीचर पकड़ती हो कि होमवर्क नहीं किया और कल सौरभ के व्लॉग में तुम उछल रहे थे। ऐसा कभी होता है? क्योंकि रोज डेली व्लॉग है ना, तो देख लेती हूँ। डेली व्लॉग नहीं देखती मैं, मतलब करती है कभी कभी ऐसे कि व्लॉग्स ऐसे होते हैं, मतलब व्लॉग से तो पकड़े तो जाते होंगे कभी कभी, है ना। ये तो निकल जाता होगा अपना एडिट करके, जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो पकड़े जाते होंगे। ये कह भी नहीं सकता कि मैं कल बुखार था। अच्छा गाड़ी तुम भगा रहे थे ना, थार सांप पकड़ रहे थे, मैगी खा रहे थे। मैगी खा रहे थे। सच में मुझे लगता है कि मैगी तुम लोग इतनी खाते हो कि मैगी के ब्रांड में से तुम बन सकते हो, है ना। बन जाएंगे। मैगी की जगह पीयूषी आ जाएगा, पीयूषी न्यूडल। पहाड़ों में मैगी चलती है ठंडे ठंडे में। अच्छी बात यह है कि पहाड़ों में मैगी बना के रखा हुआ है ना। कोई उसमें मिल्क शेक नहीं बनाया, मिल्क शेक नहीं सच डाली। में तुम लोगों ने वो वीडियो देखा? हाँ, अरे हाँ, भैया हाँ, कोई आइसक्रीम डाल रहा, कोई फैंटा वाली मैगी। सिर्फ 2 ही टाइप की मैगी मिलती है, प्लेन मैगी, वेज मैगी। बस वेजिटेबल डाल के और प्लेन मैगी। घर में कोई एक्सपेरिमेंट किया कभी? कुछ ये डाल के देखे, कुछ बनाई कभी अतरंगी मैगी? सीरियसली यार, वो मतलब वो बटर डाला, मलाई डाली थी एक दिन। ओए बट चीज मैगी तक ठीक है। हाँ चीज मैगी। चीज तक फिर भी मेरे को भी अच्छी नहीं लगती, हालांकि चीज फिर भी ठीक है, लेकिन जो वो फैंटा चॉकलेट मैगी, दूध वाली मैगी, इससे अच्छा तो एक कटोरी गोबर खा लो। ओरियो मैगी, हाँ मैं देखे अच्छी है guys। ये हल्द्वानी से कितना दूर है? क्या जाते हो जहाँ पे? हल्द्वानी में ही है, हल्द्वानी के चारों तरफ। हमारा घर ही फॉरेस्ट में है। हाँ घर हमारा फॉरेस्ट है, एक दिन उसके हमारी बीच में हमारा सोसाइटी के अंदर हाथी आ गया था। जंगली हाथी। जंगली हाथी सोसाइटी की दीवार थी दीवार तोड़ इतनी के। बड़ी, उसके उसमें सर मारा, उससे पूरी सोसाइटी घूमा और चला गया वहीं। छोटा था क्या बड़ा? बहुत बड़ा बड़ा था। हाथी यार बट वो तो जो दीवार तोड़ सकता है वो तो घर में भी घुस सकता है। घर में नहीं आता, लगे पहाड़ी इलाके च रहंदे। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ। वो खेतों में जाता है, खेतों में उसको मिल जाए ना कुछ खाने पीने के यार लिए। फिर वापस खुद ही चला गया? हाँ रात को आया चला गया तोड़ के। रात को पता चला कैमरे वैमरे में कि आया था वो, बढ़िया रोड में चल रहा था वो। तो यार वहाँ पे तो हाँ शेर वेर भी आते आते होंगे। आते हैं। शेर नहीं, संभाल के रखना भाई, बाघ। शेर वेर ना है। शेर तो लायन होता है, बाघ होता है टाइगर। टाइगर आते हैं और पंजाबियों के लिए टाइगर सारे और शेर होते लेपर्ड। हैं। अच्छा टाइगर लेपर्ड। हल्द्वानी के बारे में बताओ यार। हल्द्वानी बिकॉज हमने तो हल्द्वानी आपके व्लॉग्स में देखे। अच्छा है, और सबसे ज्यादा मुझे व्लॉग्स में वो अच्छा लगता है कि गाड़ी में निकल गए और कहीं जा रहे, ट्रैकिंग, पहाड़ है, बारिश है, जहाँ पे पानी आता है ये लोग रोक के ड्रोन उड़ाते हैं। अब देखो उधर से पता नहीं हमारे साथ क्या होता है, हम कभी भी गाड़ी लेके निकलते हैं तो कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। अब कहीं ना कहीं चले जाते हैं, हमारा प्लान बना कि ऐसी गाड़ी लेके निकल जाता है, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे हम। फिर मतलब कभी नैनीताल पहुंच जाएंगे, कभी कहीं का प्लान बनेगा हम कहीं पहुंच जाएंगे, ऐसा हाँ है। जैसे पिछली बार ये आप लोग उत्तराखंड से गाड़ी चला के यहाँ पे मुंबई आए थे और मुंबई से भी कहाँ गए थे? गोवा। हाँ माय नहीं, गॉड, गोवा नहीं गए, मुंबई गोवा नहीं गए, मुंबई तक। क्यों भाई, तुम्हारा सच में घूमने आए थे कि कोई सप्लाई करते हो? आलू वालू देने आते हो? गाड़ी में ये
कैसा पैशन है ड्राइव करने का ना। कितने घंटे? उस दिन तो मैंने लगातार 12-13 घंटे ड्राइव किया था। ओह अच्छा, ये बॉबी भैया 12-13 घंटे का रास्ता है ना। बॉबी भैया नहीं अपने व्लॉग में छा चुके हैं, जैसे बाकी सब व्लॉग का हिस्सा है, मम्मी डैडी सब। ये बॉबी भैया की लड़कियां बहुत दीवानी है। बॉबी भैया के साथ ट्रैवल करना चाहती, क्योंकि बॉबी भैया एक प्रॉपर माचो मर्द होते हैं ना, जो पूरा टेंट लगाते हैं, गाड़ी पंचर होगी तो अकेले कर लिया। मतलब वो सनी देओल, धर्म, सबका मिक्सचर है। तो कौन है बॉबी भैया? बॉबी भैया हमारे ही गांव के हैं और उनसे पहली बार मिले थे। उनका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मिले थे और मतलब एक हो जाता है ना, एक वाइब मैच हो जाती है, कनेक्ट हो जाते हैं। वो सेम मतलब हम मेरी तरह निकले, मुझे मिले और एकदम से पहली बार में वाइब कनेक्ट हो गई। कितने साल पहले मिले? अभी 1 साल हुआ होगा। और वो 1 साल की दोस्ती लगती नहीं ना। हाँ सच में ऐसे लगता कि या तो वो रिश्तेदार है जो इधर ही इनके साथ शिफ्ट हुए हैं, और फर्ज है कि जब घूमने जाएंगे ये दोनों साथ में होंगे। और वो एकदम बड़े हिम्मती हैं वो। अपने बच्चे की तरह केयर करते हैं हमारी। देखा भाई, वो देखा और मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब ट्रैकिंग के कोई किस्से? एक बार हुआ था। क्या? हम कितने जने थे? हम 1 2 3 4 4-5 जने थे हम। हम गए थे ऑफ रोडिंग करने जंगल में, नदी में थे हम। लिटरली नदी है, उसके बीच में हम है। तो पत्थर होते हैं नदी में, तो हम नदी को क्रॉस कर रहे थे एक बार, और एकदम से खट आवाज और स्टीयरिंग टूट गया। मतलब नीचे से स्टीयरिंग का कुछ होता है, मतलब स्टीयरिंग यहाँ से घूम रहा है, नीचे से नहीं घूम रहा। नदी के बीच में? नदी के बीच में पानी था थोड़ा थोड़ा? बहुत पानी था। ओह काफी पानी था, गाड़ी आधी डूबी हुई थी। मतलब इतना पानी था, और मेन चीज ऊपर से बारिश हो रही थी। कभी भी पानी तेज हो सकता और हमारी गाड़ी नीचे बह जाएगी सीधा, ऐसा सीन था। तो हमने विंच से जैसे तैसे करके गाड़ी को थोड़ा बाहर निकाला। मतलब 2 टायर अंदर थे, 2 टायर बाहर हो गए थे। तो ये करा, फिर हो गई थी रात, शाम के 6-6:30 बज गए थे। सबको हो गई टेंशन, अब क्या करें। आगे हमारा अलग प्लान बना था कि आगे जाएंगे, आगे थोड़ी सही जगह है, मतलब टेंट वेंट लगाने के लिए, वहां पर रहेंगे। ग्रासलैंड टाइप के थे आगे से। तो नदी में लिटरली इतने बड़े बड़े पत्थर, वहां पर हमने टेंट लगाया। वहीं पर खाना बनाया हमने, सब कुछ वहीं पर करा, और पत्थरों के ऊपर टेंट लगा के उसमें सोए हम लिटरली। और रात, और सुबह होते ही, अगली सुबह होते ही बॉबी भैया चले गए पैदल हल्द्वानी की तरफ। हाँ, वो भी और मैं गए थे पैदल, इनको छोड़ के जंगल। पैदल हम टेंट में ही थे। हम नहा रहे, हम नदियों में नहा रहे, और ये वहाँ वो लेने गए थे, ठीक करने का सामान। पैदल? और वहाँ पे मैकेनिक आ नहीं सकता वहाँ पे। हाँ। तो वो खुद सामान लेके आए, मेरे साथ में जाके पैदल गए हम आगे पूरे रोड तक। फिर उसके बाद आके उन्होंने खुद ठीक करी गाड़ी। खुद ठीक करी लिटरली। यार बॉबी भैया तो माचो मैन निकले यार, सच में रियल एडवेंचर वाले। माचो मैंने वो पूरे ऐसे कहीं से भी ट्राई करा सकते हैं, मतलब कहीं से भी ट्राई करा सकते हैं। हम नदी के बीच में सोए हुए हैं, कोई सेफ जगह नहीं है वो। अच्छा। और जगह भी ऐसी प्लेन नहीं, ऐसे सीधी नहीं, ऐसे में सोए थे हम। ऐसे में सोए थे हम। फिर जो होता है घर जाके बताते हो कि आज ऐसा हो? मम्मी ने बता रहा हूँ, इतना डांटा था ना। रिश्तेदारों के फोन आए, तुम बच्चों को कहाँ भेज रहे हो, किसके हाथ भेज रहे हो। अच्छा, व्लॉग देख के? हाँ, व्लॉग देख के। हाँ। मतलब मम्मी तो इतना गुस्से में हो गई थी ना सब, कि आज के बाद जाना ही नहीं है, वो भी साथ जाना ही नहीं है आज के बाद। मतलब बहुत दिन बहुत पंगे हुए थे वो। मैंने क्योंकि ये व्लॉग शूट कर लेता है ना, तो कभी कभी व्लॉग के फायदे होते हैं, कभी डांट भी पड़ जाती है, सच्चाई पता चल जाती है। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਚਿੰਗ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੌਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਬੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਗ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਲੌਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।